गाओ। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि। नानुशोचितम् अर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि। नानुशोचितम् अर्हसि। अव्यक्त अव्यक्त इनविजिबल invisible. अयम I am दिस सोल the soul. अचिंत्य Achintya. इनकंसीवेबल Inseparable. अयम I am दिस सोल this soul. अविकार्यः Avikarya. अनचेंजेबल Unchangeable. अयम I am दिस सोल this soul. उच्यते Uchyate इज सेड is said. तस्मात् Tasmat. therefore Therefore. एवं Evam. like this Like this. विदित्वा Viditva. knowing it well Knowing it well. एनम Enam. this soul This soul. na Na. do not Not. अनुशोचितम Anusochitam. lament Lament. अर्हसि Arhasi. to deserve. You deserve. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Judge. It is said It is said that the soul is invisible, that the soul is invisible, inconceivable, inconceivable, immutable. immutable. Knowing this, Knowing this, you should you should not grieve not grieve for the body. for the body. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. jai. कौन पढ़ेगा? Mataji, can I read? Yes. As described previously, the magnitude of the soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invisible. As far as the soul's existence is concerned, no one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti or Vedic wisdom. We have to accept this truth because there is no other source of understanding the existence of the soul, although it is a fact by perception. There are many things we have to accept solely on grounds of superior authority. No one can deny the existence of his father. Based upon the authority of his mother, there is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is Inconceivable. inconceivable by human experimental knowledge. The soul is consciousness and conscious that also is the statements of Vedas. And we have to accept that unlike the bodily changes, there is no change in the soul. As eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite supreme soul. The supreme soul is infinite
and the atomic soul is Infinitesimal. infinitesimal. Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can ever become equal to the infinite soul or the supreme personality of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in different ways just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter uh, Thoroughly. thoroughly, thoroughly without error. शाबाश, हरी बोल. अभी देखते हैं. हरी बोल, हरी बोल. गुड. सो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम. अव्यक्त मतलब इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता. क्या कौन सी चीजें आपको दिखाई नहीं देती, बताओ मुझे. इनविजिबल. माता जी वायु. वायु दिखाई नहीं देती. वेरी नाइस. इथर दिखाई देता है क्या? तो अभी नहीं दिखाई देती. तो इनविजिबल, अव्यक्त मतलब इनविजिबल, जिसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता किसी रूप में, है ना. व्यक्त मतलब डिस्क्राइब, और अव्यक्त मतलब इनडिस्क्राइबेबल, मतलब इनविजिबल, जो दिखता ही नहीं, उसको क्या कहेंगे? इनविजिबल. अयम मतलब दिस सोल. अचिंत्य. अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, मतलब चिंत्य मतलब क्या? कंसीवेबल. आपको मैं बोलूं स्काई ब्लू होता है, तो आप मन में स्काई ला सकते हो ब्लू कलर का? ला सकते हो माइंड में? माता जी. माइंड में आता है ना ब्लू स्काई. हाँ माता. इफ आई से ट्रीज आर ग्रीन, दिखाई दिए ट्रीज ग्रीन माइंड में? यस माता जी. यस माता जी. इफ आई से दैट माउंटेन्स आर बिग, दिखाई दे रहे माउंटेन्स माइंड में? यस माता. यस और नो? यस. Yes. So whenever we are talking about, okay, river flows. When I say river flows, are you able to see river in your mind? Yes माता. Yes माता जी. So this is called as conceivable. Conceivable मतलब आप इमेजिन कर पाते हो. अगर मैं ब्लू स्काई बोलूं तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, कंसीव कर पा रहे हो माइंड में. यस और नो? जो भी अभी आपने माइंड में देखा उसको क्या कहेंगे? कंसीविंग इन माइंड. क्या कहेंगे? कंसीविंग मतलब Conceiving. वो आइडिया एटलीस्ट इमेजिन तो कर पा रहे हो ना. देखा है तो इमेजिन कर पा रहे हो. यस और नो? Yes माता. कीप आंसरिंग में. ऑलराइट. सो अगर जो भी चीज आप इमेजिन कर पाते हो उसको कंसीवेबल कहा जाता है. मैं अगर कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा बोलूं, ओके, ऐसे सोचो जैसे दो बिजलियां एक साथ कड़क रही है. कर पा रहे हो इमेजिन? एक Yes, साथ ma'am. दो लाइटनिंग. ओके ग्रेट. क्यों? क्योंकि आपने बिजली कड़कते हुए देखी है. ये राइट. तो आप माइंड में कंसीव कर पा रहे हो. अब मैं कहती हूँ कि 3 बिजलियां एक साथ कड़क रही है स्काई में. देर आर 3 लाइटनिंग स्ट्रोक्स. कैन यू सी देम इन माइंड? Yes माता. वेरी गुड. 4 लाइटनिंग स्ट्राइक्स. एबल टू सी? Yes माता. नाउ एवरीथिंग दैट आई से आपने देखा नहीं है जब से जन्मे हो. साथ में 4 बिजली कड़कते हुए आपने कभी देखा नहीं होगा. देखा है किसी ने रियल में? नहीं माता जी. लेकिन आप इमेजिन कर पाए. Yes माता. दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्शन. कंसीवेबल मतलब माइंड में इमेजिन कर सकते हो. अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल. आत्मा के बारे में कितना भी एक्सप्लेन करो, आत्मा को इमेजिन नहीं कर पाता इंसान. कोई भी इमेजिन नहीं कर पाता. आत्मा क्या है? इनकंसीवेबल है. आप माइंड में उसका कोई एक स्पेसिफिक आकार नहीं बना पाते, उसको देख नहीं पाते माइंड में. इसलिए आत्मा को क्या कहा जाता है? अचिंत्य. इनकंसीवेबल. अचिंत्य. Inconceivable. बोलो आत्मा क्या है? आत्मा अचिंत्य है. अचिंत्य मतलब आप देख ही नहीं सकते. ऐसा नहीं कि आंखों से नहीं देख सकते, आप मन की भी आंखों से नहीं देख सकते. आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. माइंड में कंसीव नहीं कर पाते. आत्मा दिखती कैसे है? मैं अगर अभी बोलूं कि 10 बिजलियां कड़कते हुए देखो, तो भी आप इमेजिन कर पाओगे, हाँ या ना?
Yes, Mataji. इंद्र देवता को हाथ में वज्र लेते हुए देखो, क्लाउड्स को ऑर्डर करते हुए देखो, बारिश करो, वो भी आप इमेजिन कर पाओगे? यस और नो? Yes, Mataji. देखो, जो चीजें जन्म से आपने देखी नहीं है वो इमेजिन कर पा रहे हो, लेकिन आत्मा ऐसी चीज है जो इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इनकंसीवेबल। Inconceivable. अंडरस्टूड? Yes, अचिंत्य। Mataji. अभी पहली लाइन की पहली लाइन समझ में आ गई? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम का मतलब क्या है? Yes, Mataji. आत्मा अव्यक्त है और अचिंत्य है। बोलो, गाओ, मन से गाना, जैसे कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। आज कृष्ण अर्जुन को एक्सेप्टेंस देंगे। आज जो कुरुक्षेत्र में ये श्लोक बोला जा रहा है, कृष्णा बोल रहे हैं, आज कृष्णा अर्जुन को फाइनल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं आत्मा की, कि अब अर्जुन तुम एक्सेप्ट कर लो कि आत्मा अव्यक्त है और अचिंत्य है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। Avyaktoyam Achintoyam. अब समझ में आया कृष्णा किस तरीके से बता रहे हैं अर्जुन को? आत्मा Yes, इनविजिबल है और आत्मा इनकंसीवेबल है बता रहे। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा क्या कह रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं आत्मा तो अविकार्य है। अविकार्य मतलब अनचेंजेबल। ठीक है। तो आत्मा बदलती नहीं है, जैसे शरीर बदलता है वैसे आत्मा किसी भी तरीके से बदलती ही नहीं है। मन भी बदलता है ना किसी किसी का। आज साइकिल अच्छी लगती है, हो सकता है कल को बाइक अच्छी लगे। यस और नो? yes, Mataji. बाइक अच्छी लग रही है, हो सकता है आगे जाकर कार अच्छी लगे। तो मन बदलता है या नहीं बदलता? Yes, Mataji. राइट? इस तरीके से आत्मा क्या है? आत्मा नहीं बदलती। इंटेलिजेंस भी बदल सकता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 - 2 नहीं आता था, 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो 1 - 2 का भी आंसर आ जाएगा। इंटेलिजेंस भी बदलता है, इंटेलिजेंस भी बदलता है। सो इस तरीके से अविकार्य है आत्मा, अविकार्य है। मन बदल सकता है, इंटेलिजेंस बदल सकता है, अहंकार भी ज्यादा का कम हो सकता है, कम का ज्यादा हो सकता है, शरीर बॉडी का ही बदलता है। बॉडी तो बदलती है, वो तो हमें पता ही है, बुढ़ापे तक बदलती जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार भी बदलता जाता है, लेकिन आत्मा क्या है? अविकार्य है, अनचेंजेबल। तो आज कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को अविकार्य है। तस्मात, देयरफॉर कहते हैं भगवान अर्जुन को, देयरफॉर नोइंग इट वेल, विदित्वा। विदित्वा मतलब ये बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी ये नोइंग इट वेल, तुम रो मत, तुम अनुशोचितम मत करो। अनुशोचितम का मतलब क्या है? टू लैमेंट। ठीक है। देखो, शोचितम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दुख होना, है ना, रोना धोना। अनुशोचितम का मतलब क्या है? रोने के परे जाकर दुख होना। मतलब अभी तो रोना भी नहीं आता, इतना ज्यादा दुख हो चुका होता है। तो कह रहे हैं कृष्णा कि तुम ये अनुशोचितम मत करो ऐसी आत्मा के लिए जो बदलती नहीं है, जो दिखाई नहीं देती और जो इनविजिबल है। ऐसी आत्मा के लिए रोना गलत बात है। अनुशोचितम, नोइंग इट वेल, डू नॉट लैमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं ट्रांसलेशन में? प्रभुपाद बताते हैं कि सोल इज इनविजिबल, इनकंसीवेबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। अगर बॉडी जा रही है तो बॉडी के लिए नहीं रोना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो वैसे भी आपको पहले से ही नहीं दिखाई दे रही थी, बदल भी नहीं रही थी और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर्पट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सोल इतना छोटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोल इज सो स्मॉल, इतना छोटा है कि कितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, वैदिक मटेरियल कैलकुलेशन मतलब अपने ब्रह्मांड में जितना मैथमेटिक्स के नंबर्स है उसको सबको, सारे बड़े बड़े मैथमेटिकल साइंटिस्ट को इकट्ठे लाओ और उनको बोलो कि आत्मा की साइज डिफाइन करो, तो भी वो लोग नहीं कर पाएंगे। कहते हैं मटेरियल कैलकुलेशन से मैग्नीट्यूड जो सोल का है वो इतना छोटा है कि मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, बेस्ट मैथमेटिशियंस को लाकर मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप भी बनाया ना, तो भी आत्मा इनविजिबल ही रहेगी। फिर प्रभुपाद कहते अगर देखो कल को ना कोई आए, कोई कंट्री आई
या साइंटिस्ट आए और बोले कि हमने आत्मा को खोज निकाला, हमारे पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप बन गया है, जो कि होगा, ऐसे भेड़िए, ऐसे धोखा देने वाले लोग जन्मेंगे आफ्टर 5 लाख ईयर्स, 10 लाख ईयर्स, 30 लाख ईयर्स। इसके बाद तो इन लोगों ने जन्मना ही जन्मना है, और इन्होंने बोलना है कि देखो जी, हमने ऐसा एक माइक्रोस्कोप बनाया है जिससे आप आत्मा को देख सकते हो। ऐसे फंसाने वाले बहुत आएंगे, और लोग जिनका भगवत गीता नहीं आती वो भरोसा भी करेंगे। भक्त होंगे जो भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा, जिनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसा, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने ऑलरेडी बता के रखा है, कितना भी मटेरियल कैलकुलेशन कर लो, पावरफुल माइक्रोस्कोप बना लो, फिर भी सोल क्या रहेगा, इनविजिबल रहेगा। तो आज हमें ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी हमारे मन में कि अगर आत्मा दिखती नहीं है तो भी है, और आत्मा कभी दिखने नहीं वाली। तो अननेसेसरी जो हो ही नहीं सकता, जो देख ही नहीं सकते, उसके लिए जिद करना सही बात नहीं होती। सो एज फार एज सोल्स एग्जिस्टेंस इज कंसर्न, अब प्रूव कैसे होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं आज तक कोई भी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है एक्सपेरिमेंटली। मतलब देखो, सप्तऋषि आकर चले गए, आए ना, सप्तऋषि भी आए, हमारे पुलस्त्य ऋषि थे, फिर इतने सारे अगस्त्य ऋषि थे, इतने सारे ऋषि आकर चले गए, लेकिन आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया है आत्मा के बारे में कि आत्मा दिखी उनको, क्योंकि किसी ने आत्मा देखी ही नहीं आज तक। अगर कोई मायावादी आकर कहता है ना, मैं मेडिटेशन में बैठा था और मुझे मैं दिख गया, भाई तेरे को तू कैसा दिखा? आप देख ही नहीं सकते आत्मा को, तो आप अपनी आत्मा भी आपने कैसे देख ली मेडिटेशन में? तो अगर आज कोई बोलेगा कि हाँ मैंने अपनी आत्मा को देखा है, तो वो सरासर झूठ होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े सप्तऋषि आकर चले गए, डेमिगॉड्स आकर चले गए, सत्यलोक, महरलोक, जनोलोक में करोड़ों करोड़ों की पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम लेवल का योग ये प्रैक्टिस करती है, उनको भी नहीं दिखता आज तक, एक्सपेरिमेंटली उनको भी नहीं दिखा है, हमें क्या दिखेगा? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? श्रुति, मतलब वेद शास्त्रों पे डिपेंड रहना पड़ता है आत्मा के बारे में जानने के लिए। आत्मा हमें आंखों से नहीं दिख सकती, मन से भी इमेजिन करके भी नहीं दिख सकती, इंटेलिजेंस तो दूर की बात। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ बिकॉज देर इज नो अदर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं प्रभुपाद कि और कोई सोर्स है ही नहीं आत्मा के बारे में समझने के लिए, या आत्मा को देखने के लिए। आत्मा को वेद शास्त्रों के टेक्स्ट से ही समझा जा सकता है, और कोई उसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कहते कि इट इज अ फैक्ट बाय परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि आपको वेद शास्त्रों के आंखों से देखना पड़ता है, अपनी आंखों से, अपनी मन से, अपने बुद्धि से आप नहीं देख सकते आत्मा को। देयर आर मेनी थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी। बहुत सारी चीजें होती है जो हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते। कुछ लोग कहते हैं ना, ऐसे कैसे, आपकी भगवत गीता ने बोल दिया और हमने मान लिया। अगर भगवत गीता कल को कहेगी यू कैन नॉट सी स्काई, तो क्या हम मान ले? कल को अगर भगवत गीता कहेगी यू कैन नॉट सी सन, तो क्या हम मान ले? हम तो देख के रहेंगे भैया। तो वैसे ही कोई कोई लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो तब प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, बहुत सारी चीजें आप वैसे भी सुपीरियर अथॉरिटी के बेसिस पे एक्सेप्ट करते आए हो, आपने उसको तो कभी चैलेंज नहीं किया। लेकिन जैसे ही भगवत गीता कहती है आत्मा नहीं दिखती, उसको आप चैलेंज करने आ गए। आप वैसे भी, प्रभुपाद अभी एग्जाम्पल देते हैं, देखो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला है कि ये मेरे फादर है नहीं, है ना। घर में जो पापा होते हैं, कोई डिनाई करता है क्या कि ये मेरे फादर है ही नहीं? ऐसा कोई बोलता है घर में आकर? आज बोलता है क्या कोई एग्जिस्टेंस ऑफ फादर? फादर घर आ रहे हैं ऑफिस से और फिर भी बोलना है कि ये मेरे फादर नहीं है? ये कैसे ऑथोरिटी ऑफ मदर? जब मम्मा बताती है कि बेटा ये आपके पापा है, तो आप भरोसा करते हो या नहीं करते? हाँ माता जी। करते हो ना। तो वैसे भी आपने सुपीरियर अथॉरिटी मम्मा के कहने पर सुनी है। तो वैसे ही वेद शास्त्र जब बताते हैं कि आत्मा दिखती नहीं है, अचिंत्य है, अविकार्य है, और इनविजिबल भी है, अव्यक्त है, अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार्य है। जब वेद शास्त्र कह रहे हैं, तो मम्मा जब बताती है ये तुम्हारे पापा है, वैसे ही वेद बताते हैं आत्मा के बारे में, और उस पर भरोसा कर लेना चाहिए। क्योंकि आप वैसे भी दुनिया में बहुत सारी सुपीरियर अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। डॉक्टर के पास जाते हो,
और डॉक्टर कहते हैं कि भैया आपको वायरल हुआ है, आपको बुखार आ रहा है, आपको पैरासिटामोल लेनी पड़ेगी, तो आप सुपीरियर अथॉरिटी डॉक्टर को अथॉरिटी मानकर पैरासिटामोल खा लेते हो, हाँ या ना? आप लेते हो ना बुखार की दवाई। तो वैसे भी आप क्वेश्चन करने नहीं जाते डॉक्टर को, डॉक्टर आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, डॉक्टर फोटोग्राफ्स दिखाओ कॉलेज के, डॉक्टर कॉलेज में एडमिशन का सर्टिफिकेट दिखाओ अपना, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकालो, कहाँ पे रजिस्टर हुए हो आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, ऐसा कुछ आप उस वक्त पे नाटक करते हो? ये सारा करता है क्या कोई? डॉक्टर को एज ए सुपीरियर अथॉरिटी मान लेते हैं ना लोग, यस और नो? हाँ माता जी। इस तरीके से हम बहुत सारे ब्रह्मांड में चीजें हैं जो एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। सुपीरियर अथॉरिटी, अगर आपको स्कूल में प्रिंसिपल ने बोल दिया कि हाँ हम 15 अगस्त को एक फंक्शन होस्ट करने वाले हैं, तो आप सुपीरियर अथॉरिटी समझ के उनकी बात मान लेते हो ना, या क्वेश्चन करते हो, प्रूफ दिखाओ 15 अगस्त को ये इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, हमें सर्टिफिकेट्स दिखाओ, हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। फिर आप बोलते हो भगत सिंह ने लड़ाई की थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसका भी हमें प्रूफ दिखाओ। ऐसे जा रहे हो क्या कहीं पे आप प्रूफ मांगने के लिए स्कूल में? आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना सुपीरियर अथॉरिटी? वैसे भी जब से जन्मे हो हम लोग सुपीरियर अथॉरिटी एक्सेप्ट करते ही जा रहे हैं। नर्सरी में टीचर कहती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तब से हम, मैम कहती है इसलिए हमें स्टार लिटिल स्टार ही लगता है, और हमें स्टार ट्विंकल ट्विंकल करता हुआ ही दिखता है। आज तक हमने नर्सरी के मैम को भी क्वेश्चन नहीं किया, सुपीरियर अथॉरिटी समझकर हमने एक्सेप्ट किया, हाँ या ना? यस और नो? सो यस माता। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में नर्सरी में एक्सेप्ट करते हो, अगर मटेरियल वर्ल्ड में मम्मा जो कहती है कि पापा तुम्हारे फादर है, अगर ये सारी चीजें डॉक्टर जो कहते हैं वो मान लेते हो, आपको अगर आप हेयर कट करने जाओगे और हेयर कटिंग करने वाले ने कुछ बोल बताया कि आप ये कट करो वो कट करो, आप ऐसे करो वैसे करो, तो आप उसकी भी सुन लेते हो। तो आप हर जगह जाकर तो सुपीरियर अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन भगवत गीता अगर कहती है तो आप क्वेश्चन लेके आते हो। तो इस पे ड्यूअलिटी, ऐसा ड्यूअल नेचर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप ब्रह्मांड में हर इंसान को क्वेश्चन करने लग जाओ, डॉक्टर को भी क्वेश्चन करो, हिस्ट्री की बुक को भी क्वेश्चन करो, ज्योग्राफी की बुक की भी क्वेश्चन करो, सबको ही क्वेश्चन करो लाइफ में। कोई कहेगा कि ये रोड टिकेगी अगले 100 साल तक, करो ना, क्वेश्चन करो, उसको भी क्वेश्चन करो। सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, देन यू कैन नॉट ओनली क्वेश्चन वन थिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सुपीरियर अथॉरिटी एक ऐसा प्रमाण माना गया है बहुत सालों से, हमेशा से, नित्य काल से सुपीरियर अथॉरिटी को एक प्रूफ माना गया है। जब कोई सुपीरियर अथॉरिटी बताती है तो हम उनकी बात आंखें बंद करके मान लेते हैं। सो नो वन कैन डिनाई। तो कहते प्रभुपाद, देयर इज नो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी ऑफ फादर एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ मदर। हमें और कोई ऑप्शन नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पिताजी कौन है। जो मम्मा जो बोल रही है वो हमें मानना ही पड़ेगा। सिमिलरली देयर इज नो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोल एक्सेप्ट स्टडिंग वेदास। वेद शास्त्रों को पढ़े बिना आपको आत्मा समझ ही नहीं आ सकती। जो लोग ऐसे ही माइक्रोस्कोप लेके बैठे हैं आज भी लाइफ एंड डेथ को स्टडी कर रहे हैं लेबोरेटरी में। टुडे ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन अमेरिका, चाइना एंड दीज कंट्रीज वेयर दे वांट टू फाइंड द सोल। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि रोबोटिक्स इतना डेवलप हो रहा है, उनको वो चाहते हैं कि कभी अगर हम रोबोट में आत्मा डाल पाए तो हमारी इन्वेंशन को कोई कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो बहुत एक रिच इंसान है अमेरिका में, उसने अपने सारे पैसे इस स्टडी पे लगा के रखे हैं, जहां पे वो एलियंस को पकड़ के लाना चाहता है, उसकी आत्मा को स्टडी करना चाहता है, एलियंस की आत्मा को। फिर वो यहाँ पे भी जिनकी भी डेथ होती है हॉस्पिटल, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया है एक हॉस्पिटल में जहाँ पे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं। तो कैंसर पेशेंट्स लास्ट स्टेज पे होते हैं, वो मरते हैं। तो उसने उस हॉस्पिटल के साथ भी अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसने बोला है जितने भी मरने वाले होंगे ना उनको हमें लेबोरेटरी में दे दो, नहीं तो हम हॉस्पिटल में एक लेबोरेटरी सेटअप करते हैं। ऐसे करके दे आर स्टडिंग द डाइंग पीपल, दे आर स्टडिंग, और वो साइन लेते हैं रिलेटिव्स का। वो कहते हैं रिलेटिव्स को कि हम आपके जो ये जा रहे हैं इनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, आप अगर हमारे प्रोजेक्ट को फंडिंग दोगे
तो हम प्रोजेक्ट को फंडिंग मतलब आप थोड़ी सी लक्ष्मी दान करोगे तो हम ये प्रोजेक्ट आपके जो भी चले जा रहे हैं, हाँ, इसके रिसर्च में आप मदद कर पाओगे। और अगर हम इसमें पास हो गए तो आपके चाचा जी, नाना जी जो भी जा रहे हैं उनको हम वापस लाके आपको दे सकते हैं किसी और बॉडी में। ऐसे करके रिसर्च चल रहा है अमेरिका में, चाइना में भी सेम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें भगवत गीता में क्लियरली समझ में आता है कि आत्मा को समझना किसी लेबोरेटरी की या फिर मटेरियल बुक्स में है ही नहीं। इट इज ओनली देयर इन स्टडिंग द वेदास। वेद शास्त्रों को पढ़ के ही आत्मा समझ में आ सकती है, नहीं तो समझ में नहीं आ सकती। आ रही है बात समझ में? सुनाई दे रहा है सबको? एवरीबडी इज विथ मी? हाँ माता जी। Okay. So in other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. अभी तो हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा ना कैसे इनकंसीवेबल है। सबको प्रैक्टिकल पता चल गया आत्मा इनकंसीवेबल कैसी है? हाँ माता जी। आंखें बंद करके इमेजिन करके चेक किया ना हमने, कंसीवेबल क्या होता है और इनकंसीवेबल क्या होता है, राइट? हाँ तो एक टाइम पे हम एयर को भी कंसीव कर सकते हैं। होली के रंग उड़ते हैं हवा में, कंसीव कर सकते हैं ना कि हवा कैसे दिखती है। फिर बादल, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत जोरों की हवा चलती है तो बारिश की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। होली के रंग उड़ाओ, सारे रंग हवा में ऐसे फैलते हुए दिखते हैं। 15 अगस्त होता है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट जाते हैं और एयरक्राफ्ट पूरा तिरंगा बनाते हैं आकाश में। तब भी हमें हवा कैसे दिखती है वो थोड़ा सा अंदाजा आ ही जाता है, राइट? यस और नो? तो हम बोले एयर, एयर भी कंसीव हो सकती है माइंड में, लेकिन आत्मा नहीं कंसीव हो सकती। तो कहते प्रभुपाद कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से आत्मा कंसीव नहीं हो सकती, इनकंसीवेबल है। सोल इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब सबको पता है क्या? कॉन्शियसनेस क्या होती है? आपको पता है क्या कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? माता जी, हम उसे माता जी, फीलिंग कह सकते हैं। consciousness मतलब एक मिनट है निर्मित, आप म्यूट जाओ, आपके खर खर आ रही है। हाँ बोलो जुई। माता जी, कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं किसी चीज को फील करना। शाबाश। कॉन्शियसनेस मतलब फीलिंग होती है। ओके। आत्मा बॉडी से चली जाती है और उस बॉडी को आप चुटी काटो तो आत्मा फील कर पाएगी क्या चुटी? उस बॉडी को आप नीडल से प्रिक करो, नीडल भी उसको फील नहीं होती। इसका मतलब क्या? आत्मा इज अ स्पेसिफिक फीलिंग। अंडरस्टूड? आत्मा के अंदर क्या फिट करके आता है? कॉन्शियसनेस फिट करके दी है कृष्णा ने ऑलरेडी। आ रही है बात समझ में सबको? कॉन्शियसनेस समझ में आ रही है क्या? हाँ माता जी। हम्म। हाँ। तो कॉन्शियसनेस मतलब यू कैन सी, यू कैन हियर, यू कैन फील एंड यू कैन टेस्ट। तो ये सारा कॉन्शियसनेस के अंडर आता है। द सोल इज कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ वेदास, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो ये एक्सेप्ट ये वर्ड ना आज के श्लोक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा ये अर्जुन को जो बता रहे हैं ना, वो अर्जुन के अंदर एक्सेप्टेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन कृष्णा को डाउट कर रहे हैं। अर्जुन ने शरणागति तो ले ली है कृष्णा की, बट अभी तक अर्जुन ने कृष्णा की एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया है। कृष्णा जो बोल रहे हैं ना कि अरे अर्जुन, तुम उनको नहीं मारने वाले, तुम शरीर को मारोगे, आत्मा तो कटती नहीं है, तो तुम कैसे आत्मा को मार सकते हो? तुम्हारे पास जो शस्त्र है, अग्नि अस्त्र है तुम्हारे पास, तुम्हारा अग्नि अस्त्र किसी भी आत्मा को जला नहीं पाएगा। फिर तुम्हें इंद्र देवता ने वज्र दिया है, तो वो वज्र से भी लाइटनिंग स्ट्राइक करो आप सबके बॉडी पे, बॉडी जल के खाक हो जाएगी, वहीं पे बॉडी का एक पार्ट भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसकी हड्डियां भी जल के राख हो जाएंगी। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा वो बिजली से भी कड़क टूट नहीं सकती। बिजली गिरने से डायमंड्स भी टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं कट सकती। तो कृष्णा ने पिछले श्लोक में ऑलरेडी बताया था, वो अर्जुन को अभी तक हो नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आज कृष्णा उनको बता रहे हैं कि अरे अर्जुन, तुम आत्मा देख नहीं सकते, मुझे ये पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा कैसे नहीं कट सकती। मेरे पास तो वज्र है पापा ने दिया हुआ, मेरे पास तो अग्नि अस्त्र भी है, मैं तो बारिश भी बहुत सारा कर सकता हूँ, पापा ही मेरे बारिश के गॉड है। तो मेरे पास तो सारी पावर है, आत्मा को गीली करने की पावर है, आत्मा को जलाने की पावर है, आत्मा को कट करने की भी पावर है। मैं तो तीनों लोगों का योद्धा हूँ। मैंने आज तक ऐसी कोई चीज ही नहीं देखी
जो पेरिश नहीं होती, मतलब जो खत्म नहीं होती। अर्जुन को ना ये इमेजिन करने में मुश्किल जा रही है कि ऐसी कौन सी चीज है तीनों लोकों में। मैं ऊपर के लोकों में गया, देवताओं से लड़ाई की, मैं वहां पे भी जीत कर आया। मैं नीचे के लोकों में गया, राक्षसों से लड़ाई की, मैं वहां पे भी जीत कर आया। पृथ्वी पे मेरे कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं हो सकता। और आप मुझे बता रहे हो कि मेरे अस्त्र कोई भी चीज को खत्म नहीं कर सकते। तो पिछले श्लोक में हमारे लिए एक्सेप्टेंस बहुत आसान थी, अर्जुन के लिए आसान नहीं है। हमने अभी तक तीनों लोकों में घूम के बहुत सारे डीमंस को ये नहीं किया है, हराया नहीं है। हमने किसी की बॉडी काटी नहीं है, ना ही हमने किसी की बॉडी जलाई है अपने अस्त्र से। तो हमारे लिए इट इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट कि हाँ चलो, आत्मा कटती नहीं है, जलती नहीं है, भीगती नहीं है या सूखती नहीं है। बट अर्जुन के लिए इट इज नॉट इजी। तो टुडे कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने आत्मा लाकर तो दिखाओ, मैं काट के दिखाता हूँ। बट अर्जुन, तुम समझो, आत्मा अचिंत्य है, अचिंत्य है, और आत्मा अनचेंजेबल है, चेंज भी नहीं होती। साथ साथ आत्मा का क्या हो जाता है, चलो ओके, सो आत्मा कभी ये नहीं होती, दिखती नहीं है, इनविजिबल है। अगर इनविजिबल है, अव्यक्त है, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा शास्त्रों के नॉलेज पर। बहुत सारे वेद शास्त्रों में बोला है अर्जुन कि आत्मा दिखती नहीं है, सो यू बेटर एक्सेप्ट दैट। तो ये एक्सेप्टेंस वेद शास्त्रों से आ रहा है, और वेदों की पढ़ाई करके ही तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे कह रहे हैं कृष्णा अर्जुन को। अंडरस्टूड? सो अनलाइक द बॉडीली चेंजेस, देर इज नो चेंज इन द सोल as eternally unchangeable. The soul remains atomic in comparison to infinite supreme soul. तो प्रभुपाद बता रहे हैं परपॉट में कि जो आत्मा होती है वो हमेशा से ही बहुत छोटी रहेगी एज कंपेयर टू कृष्णा। कृष्णा की जो साइज है ना, वो परमात्मा है। डायरेक्टली परमात्मा दिखती कैसी है आपको देखना है ना, तो कृष्णा के 2 हैंडेड फॉर्म को देखना। परमात्मा एक्चुअल में दिखने में ऐसी है। तो कृष्णा की साइज के सामने आत्मा की साइज बहुत छोटी है। प्रभुपाद कहते कि और ये चेंज भी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा अगर हम कहे ना कि आज हम छोटे हैं, तपस्या करके कृष्णा के साइज के तो बन ही जाएंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वी आर इम्यूटेबल, वी आर अनचेंजेबल। आत्मा क्या है? अविकार्य है। ये हमें एक्सेप्ट करने में आसान जा सकता है, लेकिन कंस के सामने बोल के दिखाओ आत्मा अविकार्य है, उसको गुस्सा आ जाएगा। कंस बोलेगा मैं शिव जी की तपस्या कर लेता हूँ, हिरण्यकश्यप बोलेगा मैं ब्रह्मा जी की तपस्या कर लेता हूँ, और ब्रह्मा जी को बोलता हूँ कि मेरी साइज बस कृष्णा के साइज की जितनी कर दो। ब्रह्मा जी चाहे भी तो हिरण्यकश्यप की जो आत्मा की साइज है वो कृष्णा की साइज की नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा क्या है? अनचेंजेबल है। ब्रह्मा जी खुद अपनी आत्मा की साइज बढ़ा नहीं सकते, तो क्या हिरण्यकश्यप और कंस की आत्मा की साइज बढ़ा पाएंगे? नहीं ना। बढ़ा पाएंगे क्या? किसी भी तपस्या से आत्मा की साइज बढ़ सकती है? नहीं। नहीं ना। सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस जो है आप चारों ओर से सोच के देखना कि अगर कर्दमा मुनि भी बहुत तपस्या करते और कृष्णा को प्रे करते और कहते कि मेरी आत्मा ऐसी ऐसी है और मुझे थोड़ा सा बड़ा बनना है, मुझे थोड़ा सा मेरी आत्मा की साइज बिग करनी है, कृष्णा भी नहीं देते उनको ये ऐसा वर। बिकॉज आत्मा की जो प्रॉपर्टी है वो अनचेंजेबल है, इसलिए कृष्णा डायरेक्टली क्या करते हैं, जो ध्रुव महाराज को दे दी गिफ्ट। ध्रुव महाराज को वैकुंठ जाते वक्त कृष्णा ने स्पिरिचुअल बॉडी दी थी। स्पिरिचुअल बॉडी जाकर फिर एक स्पेसिफिक साइज की बन गई थी, राइट? नारायण भगवान को सर्व करने वाली स्पिरिचुअल बॉडी जो बिल्कुल नारायण भगवान की तरह दिखती है अपार्ट फ्रॉम सर्टन साइंस। तो स्वारूप्य मुक्ति दे दी थी। जो दूत आ रहे थे ध्रुव महाराज को लेने के लिए, विष्णु दूत आए थे, वो भी नारायण की तरह ही दिख रहे थे, तो उनको भी स्वारूप्य मुक्ति दी थी। मतलब क्या? स्पिरिचुअल बॉडी का साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा का साइज जो इनफाइनाइट सिमल है, छोटी सी आत्मा है, उसका साइज बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है? नहीं। तो आत्मा क्या है? अनचेंजेबल। शाबाश। सो आत्मा कैन नेवर बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट सोल।
दिस कॉन्सेप्ट इज रिपीटेड इन वेदास, वेद शास्त्रों में बार बार रिपीट हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है, जस्ट टू कंफर्म द स्टेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन ऑफ सोल। तो ये बार बार शास्त्रों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन, अभी भगवत गीता में भी हमें अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं। आप अगर, आपको याद है क्या, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आने तक एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है? आप सबको याद है, बचपन से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते आए हो। आपने कितने सारे सम्स सॉल्व किए हैं सब्ट्रैक्शन पे मास्टरी पाने के लिए, एडिशन पे मास्टरी पाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कितनी बार आपने बार बार सॉल्व किया है ताकि पूरी जिंदगी आप ना भूलो। किया है या नहीं किया है आपने? अगर मैं हाँ आपको माता जी। बोलूं, हाँ जी, अगर आपको मैं बोलूं एकदम एट द एज ऑफ 80 कि चलो करो 5 + 6 करो, तो आप एडिशन कर पाओगे तब भी 5 + 6? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हाँ। कर क्यों पाएंगे। कर पा रहे हो? क्योंकि रिपीटेशन हुआ है, हाँ ना? वैसे ही यहाँ पे जो भगवत गीता में है, आत्मा के कॉन्सेप्ट्स को लेकर रिपीटेशन किया जाता है वेद शास्त्रों में। क्यों? ताकि हमारी कंसेप्ट जो है आत्मा की वो पक्की हो जाए। भगवान ना करे लेकिन अगला जन्म अगर लेना पड़ा और गलती से ऐसी फैमिली में कि कोई पाप किए होंगे गलती से, लेकिन अगर ऐसी फैमिली में जन्म लेना पड़ा जिस फैमिली में आत्मा को माना ही नहीं जाता, ऐसे समझा जाता है कि हम बस शरीर है, हम पहले भी मिट्टी थे, वापस मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, तो हमें अगले जन्म में आत्मा का ज्ञान कोई देने वाला मिलेगा नहीं, और हम भी बिलीव करने लग जाएंगे। लेकिन मान लो इस जन्म में आपका सोल का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है, आपका आत्मा का कॉन्सेप्ट पूरी तरह माइंड में क्लियर हो जाता है कि मुझे पता है दिखेगी नहीं, मुझे पता है होती है, मुझे ये भी पता है बदलता, उसका शेप नहीं बदलता, और मुझे ये भी पता है आत्मा के बारे में, वो कटती नहीं है, गीली नहीं होती, ना ही अग्नि से जल जाती है। और आत्मा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देख लिया आज भी, कि अव्यक्त है, अचिंत्य है, वो अपना ये नहीं करती, इनविजिबल होती है, और कंसीव भी नहीं कर सकते। अब अगला जन्म भगवान अगर ऐसी फैमिली में आ भी गया जो लोग आत्मा को मानते ही नहीं है, तो क्या होगा? हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उस फैमिली में हम जन्मेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पापा ऐसे, लेकिन पापा मम्मा ऐसे, आप बोल रहे हो कि आत्मा होती नहीं है, हम राख होके आते हैं। फिर पापा एक बात बताओ, मेरा दोस्त उस फैमिली में क्यों जन्मा है, मैं क्यों इस फैमिली में जन्मा हूँ? फिर पापा ये बताओ, वो फैमिली में इतने दुख क्यों है और उस फैमिली में इतने दुख क्यों नहीं है? पापा ये बताओ, उनके पास इतनी बड़ी कार है और किसी किसी के पास साइकिल भी नहीं है, आप ये एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट। फिर पापा बता नहीं पाएंगे आपके, फिर आप सत्य की खोज में निकलोगे और आपको स्पिरिचुअल मास्टर मिलेंगे, कोई गुरु मिलेंगे जो आपको आत्मा की सच्चाई बताएंगे कि आप अब तक तुम समझते आए हो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाना है मरने के बाद, ये गलत है, तुम एक आत्मा हो। ऐसे करके गुरु से आपका मिलन हो जाएगा, वापस भक्ति मार्ग पे आ पाओगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सोल। इसलिए भगवत गीता में बार बार रिपीटेशन, पूरा सेकंड चैप्टर कृष्णा ने आत्मा के ज्ञान पे, ताकि ना ही इस जन्म में आप भटको, ना अगले, आप लाख लाख जन्म ले लो, भले आपसे कितने भी छोटे छोटे पाप होते रहे, शुद्ध हरिनाम निकले भी ना, इतने सारे डिजायर्स है, कोई गारंटी नहीं है कि कब किस कौन सा पाप हो जाए हाथ से, कब हरिनाम से ये हो जाए, लेकिन फिर भी कृष्णा आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे जस्ट बाय सेकंड चैप्टर। एक बार ये सेकंड चैप्टर जहन में उतर गया ना, हमारे आत्मा में उतर गया और हमें एक्सेप्टेंस आ गई आत्मा के बारे में, सारी रियलिटी पता चल गई, ओरिजिनली आत्मा क्या है, हम इटरनली प्रोटेक्टेड है कृष्णा से। इटरनली प्रोटेक्टेड मतलब इट विल नॉट मैटर इवन इफ यू आर बॉर्न इन अ मिलीचा फैमिली, इट विल नॉट मैटर कौन से रिलीजन में जन्म ले रहे हो, कौन सी कम्युनिटी में जन्म ले रहे हो। हम आदिवासी कम्युनिटी में भी जन्म लेंगे, हम नर्क लोक में भी जन्म लेंगे, स्वर्ग लोक में जन्म लेंगे, भगवान न करे सत्यलोक में भी अगर हमारा जन्म हुआ तो भी हम इस पे भरोसा नहीं करेंगे। आसपास के लाखों करोड़ों ऋषि मुनि आकर हमें बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, हम वहां पे भी पूरी असेंबली के सामने बोलेंगे मुझे इस पे मैं एक्सेप्ट नहीं करता, आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। मेरे हिसाब से मुझे पता है कि आत्मा छोटी है और परमात्मा बहुत बड़े है, हमारी साइज बढ़ नहीं सकती। मुझे इस पे भी भरोसा नहीं है कि आप कहते हो कि आत्मा विलीन हो जाती है,
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उस पे डाउट आ रहा है, तो मुझे अपनी जर्नी पे निकल जाने दो। ऐसे करके आप सत्य लोक से नीचे आओगे, अलग अलग लोक में घूमोगे, क्योंकि आपके पास तब तक सिद्धि प्राप्त हो चुकी होगी। अलग अलग लोक में घूमोगे, फिर आपको अपने गुरु मिल जाएंगे, आचार्य मिल जाएंगे, जो आपको वापस आके बताएंगे हाँ ये सच है, तुम्हें डाउट हो रहा था क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने आत्मा के बारे में स्टडी किया था। मैं आपको तुम्हें वापस याद दिलाता हूँ कि आत्मा क्या होती है। तो आपको पता है ये सेकंड चैप्टर आपकी आफ्टर लाइफ भी डिजाइन कर रहा है। आपके अगले कई सारे जन्मों तक आपको ये सेकंड चैप्टर प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का कोई भी लेक्चर कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे जन्म इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। कभी भी हम कभी भी गलत संगत में पड़ सकते हैं, जन्म से गलत संगत में पड़ सकते हैं, या फिर अगले अलग अलग प्लैनेट्स में जाके हम अलग अलग फ्रेंड्स बनाएंगे, वो गलत संगत हो सकती है। हम गलत स्कूल्स में हमारी एडमिशन हो सकती है जहाँ पे ये सिखाया जाता है। वी डोंट नो कितना मटेरियल वर्ल्ड माया हमें कितने एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट करेगी। माया हमें इस लेवल तक टेस्ट करेगी जहाँ पे वो भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि तुम भगवान हो और तुम भगवान के अंदर विलीन होने के लिए जन्मे हो। अल्टीमेट लास्ट जो ये होगा ना, माया का जो वार होगा हम पे, वो यही होगा जहाँ वो लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच में डालेगी, जहाँ पे आसपास की सारी पॉपुलेशन एक ही बात पे भरोसा करेगी। जैसे आज भी बहुत सारे यूएई कंट्रीज है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, वो एक ही बात पे भरोसा करते हैं कि भगवान दिखते नहीं है, और भगवान लाइट है, और भगवान आकाश है, और हमने जाकर उसमें मिल जाना है। तो इनका कॉन्सेप्ट इतना हिला डुला है, इनके आसपास की इनकी करोड़ों करोड़ों की पॉपुलेशन इसी पे भरोसा करती है। इनके पास ना ये नहीं है अभी, वो जकड़ चुके हैं इस जेल में। अब इतने बुरी तरह वो लोग जेल में जकड़ चुके हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इसके परे नहीं जाती। कंट्री को छोड़ के बाहर जाकर उनको पता ही नहीं है कि वेद शास्त्र नाम का कुछ है जहाँ पे रियल नॉलेज आत्मा के बारे में दिया जाता है। आज भी कई पूरी पूरी कंट्रीज, करोड़ों करोड़ों का पॉपुलेशन इसमें ही बिलीव करता है कि हम मिट्टी है और मरने के बाद मिट्टी हो जाना है, एक ही जिंदगी है, जी लो। अगला जन्म तो होता है नहीं होता हमें नहीं पता, हमें गारंटी है नहीं होता। हम लोग हो सकता है माया हमें टेस्ट करने के लिए ऐसी कंट्रीज में भी जन्म दे दे, कई ऐसे प्लैनेट्स में दे दे। तो हमारा लास्ट वार तब होगा जहाँ पे माया हमें बहुत सारी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी फोर्स करेगी, क्योंकि हमारे आसपास के सारे ही सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, सभी मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके साथ साथ बैठ के हम भी मेडिटेशन करने लग जाएंगे। फिर एक्सट्रीम सिद्धि प्राप्त होगी, तब माया हमें टेस्ट करेगी कि मुक्ति चाहिए या भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए या भक्ति चाहिए। उस वक्त अगर हमने भरोसा किया कि हाँ आत्मा विलीन होने के लिए बनी है, तो हमेशा के लिए मुक्त तो हो जाओगे लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। उस वक्त अगर हमने डाउट किया और क्वेश्चन किया कि आत्मा विलीन कैसे हो सकती है, हमारी साइज बहुत छोटी है, उनकी साइज बहुत बड़ी है, हम कटते नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं दिल को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे करके आपने अगर अपना डिजायर भी पुट अप किया कि मेरा मन इसको मानने को तैयार नहीं है, तो एट दैट पॉइंट आप किसी मायावादी गुरु को रिजेक्ट करोगे और आप जर्नी पे निकल जाओगे गुरु को ढूंढने के लिए। और जैसे ही आपको गुरु मिल जाएंगे, वो आपको आत्मा का ज्ञान भी देंगे, याद करवाएंगे कि देख पिछले जन्म में भी तूने पढ़ाई की थी, तू भूल गया है, मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। फिर वो गुरु आपको आगे का सारा मार्ग बताएंगे, भक्ति योग कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। सो ये सारी जर्नी जो है ना आगे की, ये सारी जर्नी बच सकती है अगर आप इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लोगे भगवत गीता का। ठीक है, आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण माता हरे की कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता की हरे शुभ कृष्णा। रात्रि। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है क्या?